viewers, Times Now has also accessed the purported inside story behind the Congress's Raebareli move. Now, sources say that Sonia Gandhi wanted the Raebareli seat only to go to Rahul, and then late at night on Thursday, she made an emotional appeal to her son, following which the Wayanad MP changed his mind about not contesting. However, Rahul put forth a condition that if he has to leave Wayanad, then only Priyanka should contest from that seat. That is Wayanad and not Raebareli. Hence, Priyanka has not been fielded this time, so that there is a possibility later that one Gandhi family member, that's Rahul Gandhi, is an MP from North India and another, that's Priyanka, from South India. This is in addition to other theories that we have heard about Priyanka. One, that she herself opted out that all three Gandhis should not become MPs, as she felt that it could give the BJP ammunition when it comes to their dynasty attacks. And then there is Jairam Ramesh's contention that Priyanka should not be limited to one constituency or one seat, as she is busting quote-unquote Prime Minister Modi's lies pan-India. He also mentioned in his tweet in Hindi that she can contest any bypoll and enter parliament. Curiously, he chose to leave just this line out in an almost word-to-word translation of the same post in English. मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा। And there is another member of the family. However, Priyanka's husband Robert Vadra, who we just heard, he openly stated his intent rather to contest from Amethi. Remember, he had pitched himself. We played out his reaction also. But Robert Vadra, remember, was not fielded. Now there is clamour within his supporters in the Congress party for him to be formally given a position within the party. Listen in. देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जी बहुत दिन से जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि वो व्यापार तो करने दे रही है सरकार, और सेवा पहले इंसान है जिन्होंने ईडी को 28 बार झेला, लगातार 10-10 घंटे बैठे रहे, डरे नहीं और कुछ निकला भी नहीं। तो कहने के वो सोचते थे अभी काम तो करने नहीं देंगे, मुझे जनता की सेवा ही करनी है। पॉलिटिक्स, मेरा परिवार राजनीतिक है, मैं राजनीति में आके करूँ। उन्होंने सोनिया जी से कहा, राहुल जी से कहा, प्रियंका जी से कहा, उनको सही भी लगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने जो पहली शुरुआत करी थी, मैंने जो आवाज़ उठाई थी राहुल प्रियंका गांधी सेना की तरफ से कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव तो कहीं से लड़ा लो उनको, मैं उनके व्यवहार को जानता हूँ। जो आदमी कभी उनसे मिला, जो नहीं मिला उनकी बात नहीं, जो मिला है हमेशा वो उनका होगा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने स्वागत करा, भाई टिकट केलसन को दे दी, तो भी कार्यकर्ता एक ब्राह्मण को टिकट दे दी, उन्होंने ये भी स्वागत करा। अब हम डिमांड करते हैं कि हमसे उनको महामंत्री बनाकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेज दो, किसी भी राज्य में भेज दो, वो आदमी पार्टी को मजबूत करेगा, लोगों के साथ जुड़ेगा। And the BJP has been busy making the most of the question mark over the siblings' political dynamics. Amit Malviya sent across a sarcasm-laced sympathy for Robert Vadra and alleged that Rahul camp was systematically marginalizing Priyanka. He said it wouldn't be long before Priyanka rebelled. More BJP leaders have now joined in, including Rahul's challenger in Raebareli, Dinesh Pratap Singh, who asks why Rahul won't seek votes in the name of his grandfather, Feroz Gandhi. फिरोज गांधी की सीट है, इंदिरा गांधी की सीट है, सबकी सीट है, क्यों नहीं फिरोज गांधी के नाम पर वोट मांगते? आप पूछिए, दादा के नाम पर वोट नहीं मिलता है तो नहीं उनका नाम लेते हैं। ये परिवार, दादा और पोते का जो रिश्ता होता है, भारतीय संस्कार संस्कृति में इतना मजबूत रिश्ता शायद कोई होता हो, और जो पोता अपने दादा का नहीं हो सकता। रायबरेली से 100 किलोमीटर की दूरी पर फिरोज गांधी, जो रायबरेली के पहले सांसद थे, उनकी कब्र है। उस कब्र पर कभी एक फूल गांधी परिवार ने नहीं चढ़ाया, राहुल गांधी ने नहीं चढ़ाया। दादा को दादा नहीं मानते तो रायबरेली को दादा और दीदी कैसे मान लेंगे? ये पूरा देश जानता है। 31 साल तक अमेठी ने गांधी परिवार को आशीर्वाद दिया तो क्या अमेठी कर्मभूमि नहीं है? मतलब ये मेरा व्यक्तिगत, देखिए ये मैं राजनीतिक तौर पे नहीं पर व्यक्तिगत देख रहा हूँ, और जो वहाँ के कार्यकर्ता, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत काम किया है, सबकी एक इच्छा थी कि प्रियंका जी जो है वो रायबरेली से लड़े और राहुल जी अमेठी से लड़े। तो मैसेज एक कॉन्क्रीट जाता है, जैसे अमेठी ने 31 साल से गांधी परिवार का साथ दिया, रायबरेली ने भी दिया है। अगर रायबरेली कर्मभूमि है तो फिर अमेठी क्या है? तो मुझे लगता है जो नैरेटिव अच्छा सेट करने का मौका था
वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मिस हुआ है। और अमेठी में अगर राहुल जी खड़े होते तो एक मैसेज जाता कि भले 31 साल के बाद में 5 साल अमेठी की जनता नाराज थी, वापस जाके उनका आशीर्वाद लेने आए, पर किसी और को खड़ा करना मुझे नहीं लगता है कि अमेठी की जनता को वो चीज अच्छी लगेगी। और रायबरेली में आपके पास अच्छे कैंडिडेट थे, प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ सकती हैं चुनाव? The Congress has in turn told BJP to mind its own business. इसमें जो है किसी के परिवार में झांकने, व्यक्तिगत जीवन में झांकने की क्या ज़रूरत है। आप एक राजनीतिक दल हो, आप सत्ता संभाल रहे हो, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मालिक हो, इस तरह की छोटी ओछी बातें जो है आपको शोभा नहीं देती। ये चुनाव पार्टियां लड़ती हैं, पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, पार्टी का अपनी समझ होती है, उसके आधार पर किसको कहाँ लड़ाना है ये पार्टी तय करती है, पार्टी का अधिकार है। इसमें माने परिवारवाद और परिवार में झांकना, वो कमजोर, ये जीते वो हारे, क्या मतलब है इसका? इसमें ईरानी एक कैंडिडेट है, वो अपना काम करे। कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी है, कांग्रेस का अपना, हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। कौन कैंडिडेट बनेगा, कब डिक्लेयर होगा, कब फॉर्म भरेगा, उसमें दूसरी पार्टी कौन होती है कहने वाली, कमेंट करने वाली, अपना काम करे। In fact, viewers, Times Now has also accessed the purported inside story behind the Congress's Raebareli move. Now, sources say that Sonia Gandhi wanted the Raebareli seat only to go to Rahul, and then late at night on Thursday, she made an emotional appeal to her son, following which the Wayanad MP changed his mind about not contesting. However, Rahul put forth a condition that if he has to leave Wayanad, then only Priyanka should contest from that seat. That is Wayanad and not Raebareli. Hence, Priyanka has not been fielded this time, so that there is a possibility later that one Gandhi family member, that's Rahul Gandhi, is an MP from North India and another, that's Priyanka, from South India. This is in addition to other theories that we have heard about Priyanka. One, that she herself opted out, that all three Gandhis should not become MPs, as she felt that it could give the BJP ammunition when it comes to their dynasty attacks. And then there is Jairam Ramesh's contention that Priyanka should not be limited to one constituency or one seat, as she is busting quote-unquote Prime Minister Modi's lies pan-India. He also mentioned in his tweet in Hindi that she can contest any by-poll and enter parliament. Curiously, he chose to leave just this line out in an almost word-to-word translation of the same post in English. मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ, तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा। And there is another member of the family. However, Priyanka's husband Robert Vadra, who we just heard, he openly stated his intent rather to contest from Amethi. Remember, he had pitched himself. We played out his reaction also. But Robert Vadra, remember, was not fielded. Now there is clamour within his supporters in the Congress party for him to be formally given a position within the party. Listen in. देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जी बहुत दिन से जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि वो व्यापार तो करने दे रही है सरकार, और सेवा पहले इंसान है जिन्होंने ईडी को 28 बार झेला, लगातार 10-10 घंटे बैठे रहे, डरे नहीं और कुछ निकला भी नहीं। तो कहने के वो सोचते थे अभी काम तो करने नहीं देंगे, मुझे जनता की सेवा ही करनी है, पॉलिटिक्स, मेरा परिवार राजनीतिक है, मैं राजनीति में आके करूँ। उन्होंने सोनिया जी से कहा, राहुल जी से कहा, प्रियंका जी से कहा, उनको सही भी लगा, उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने जो पहली शुरुआत करी थी, मैंने जो आवाज़ उठाई थी राहुल प्रियंका गांधी सेना की तरफ से कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव तो कहीं से लड़ा लो उनको, मैं उनके व्यवहार को जानता हूँ। जो आदमी कभी उनसे मिला, जो नहीं मिला उनकी बात नहीं, जो मिला है हमेशा वो उनका हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने स्वागत करा, भाई टिकट केएल को दे दी, तो भी कार्यकर्ता एक ब्राह्मण को टिकट दे दी, उन्होंने ये भी स्वागत करा। अब हम डिमांड करते हैं कि हमसे उनको महामंत्री बनाकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेज दो, किसी भी राज्य में भेज दो, वो आदमी पार्टी को मजबूत करेगा, लोगों के साथ जुड़ेगा।